सबसे अधिक अगर कोई सोसाइटी ने सेक्रीफाइस किया है, सबसे अधिक किसी सोसाइटी ने बलिदान दिया है, पेन, तो वो है बंगाल। मोस्ट परसिक्यूटेड एंड मोस्ट एनस्लेव्ड society is Hindu society. For 1200 years, we were persecuted and enslaved continuously. Never again to terrorism, what happened in Kashmir, never again to communal violence which we suffered, never again to partition. Bengal was the only state in पूरी दुनिया में which was divided thrice. अगर direct action day और नोआखली genocide नहीं होता, जो purely Hindu genocide था, it was a call to annihilate Hindus. कलकत्ता में डेमोग्राफिकली मार्जिनली हिंदूज ज्यादा थे, तो जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो बंगाल को लेबोरेटरी बना दिया गया वायलेंस की। सुहरावर्दी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, उसने कहा 2 दिन में इतने हिंदुओं को मार दो कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। एनीबडी हु इज अ प्राउड बंगाली, दे शुड सैल्यूट अस फॉर मेकिंग दिस फिल्म। फॉर द फर्स्ट टाइम such a historical, powerful document is coming out. The perception about Bengal will change forever. Truth से किसको प्रॉब्लम हो सकता है और एक फिल्म से क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? किसी ने फिल्म देखी नहीं, किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है। They started filing FIRs. ये भारती कौन है? He is a son and daughter of माँ भारती। आप मुझे ये बताइए, पहलगांव में इतना अटैक हुआ, why didn't film industry come out on the streets? Never again. When you hear the word never again, the context usually that you and I would think of is 26/11 Mumbai terror attacks. Never again will we let Pakistani state-sponsored radical Islamist terror bleed our country. But then we have been bled for a very, very long time. And on the Chakraview podcast today, explaining why he's wearing that never again t-shirt and the context is a very special guest. I want to welcome on the Chakraview podcast Vivek Ranjan Agnihotri. Sir, welcome, the director and writer of the Bengal Files and the Tashkent Files. You're very close on the trilogy of files that you've done. But sir, before we dive into that conversation, welcome to the Chakraview podcast. Explain this t-shirt, never again. Thank you, Gaurav. Thank you very much. So this idea of never again, actually there is a lot of background to this. Okay, let me just give the context to this. When we were researching the Kashmir files, I am a very socio-politically aware person. I am son of freedom fighters. I have studied politics. But still I didn't know one thing, which is that in the history of humanity, the most persecuted and most enslaved society is Hindu society. For 1200 years, we were persecuted and enslaved continuously. और जो ये कम्युनिस्ट, हिंदी में भी बीच में बोल सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो ये जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न आइडिया है वो है ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का। दे बिलीव दैट मेजॉरिटी इज द ऑप्रेसर एंड माइनॉरिटी इज ऑलवेज द ऑप्रेस्ड। कश्मीर को इसीलिए दे परसीव दैट कश्मीर में हिंदूज आर द मेजॉरिटी, सो वही लोग ऑप्रेस कर रहे हैं। बट इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री। इन दिस कंट्री minorities have oppressed the majority for 1200 years. वरना you tell me, हजारों औरतें आग में क्यों कूदेंगी? जौहर क्यों करेंगी? सती प्रथा क्यों आई? घूंघट कहाँ से आया? राइट? इन्हीं सब कारणों से आया। यही कारण है कि एक जनरेशनल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमारी ऐसी बन गई है, हमारी मसल मेमोरी ऐसी हो गई है कि भारत का हर आदमी थोड़ा सा झुक के चलता है। आप नोटिस करिए, हमेशा बोलता है मालिक, माई बाप, बड़े लोग, साहब, किसी से भी बात करो कहेगा साहब, बड़े लोग। ये क्योंकि हम डर गए, कहीं पे एक डरी हुई सोसाइटी हमारी बन गई। बट द प्रॉब्लम इज दैट नो यंग पर्सन, इवन मिडिल एज्ड और ओल्ड पीपल, they don't know that we are the most persecuted and enslaved society in the world. आप पूछो सबसे अधिक स्लेवरी किसने की? हर आदमी आपको इंडिया में जवाब देगा ब्लैक्स। अफ्रीका में मतलब हाँ वहीं पर नजर जाएगी। ब्लैक्स के बारे में बात करेंगे। आप पूछो सबसे अधिक किसका परसिक्यूशन हुआ? लोग बोलेंगे ज्यूज का हुआ। 1200 साल हमारा हुआ है। आप चैट जीपीटी में चेक कर लो, गूगल तो मैं बिलीव नहीं करता इतना, लेकिन हमें पता नहीं है ये बात। So then I said, can you ever find a Jew child who doesn't know about
the Holocaust? Can you find a black boy or a girl who doesn't know about slavery? Can you ever find a Japanese child who doesn't know about the bombing of Hiroshima, Nagasaki? Or a Rwandan child who doesn't know about Rwandan genocide? Or an Armenian child who doesn't know about Armenian genocide? Then how come we don't know about this? And फिर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कलकत्ता में मुझे वो बोर्ड्स मिले पुराने प्लाक्स एंटीक जो वहाँ क्लब्स रेस्टोरेंट्स दुकानों में लिखे रहते थे डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। ये तो हमने पढ़ा है अपनी पढ़ा है इतिहास की पर पुस्तकों किसी में। ने ये नहीं सोचा कि डॉग्स भी उस हायरार्की में ऊपर है, इंडियंस बाद में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड लिखा हुआ है, राइट? तो उससे मेरा बड़ा खून खौला एंड आई सेड, ये एक्चुअली ज्यूज ने चालू किया था नेवर नेवर अगेन। अगेन। सो तो मैंने कहा नेवर अगेन टू genocide, never again to terrorism, what happened in Kashmir, never again to communal violence which we suffered, never again to partition, and now I'm adding never again to banning of a trailer. So हमारी ट्रेलर को वहाँ रोक दिया गया। तो so that's how it is. मैं आपके लिए भी लाया हूँ ये टी-शर्ट, I've specially got it for you. क्या बात And you है। look very handsome in this. Yeah, you're so kind. You're so kind. लेकिन ये जो मुद्दा है, this is a very serious issue that you're talking about, and I want you to shed light on the Bengal Files. So let's dive straight into Bengal Files. आपने Bengal Files मूवी बनाने की क्यों सोची? क्योंकि the allegation is, one, you make movies that target the opposition states or the opposition leaders, and why this love for Kashmir Files, Tashkent Files, now Bengal Files, before elections in Bengal? Okay, so allegation is always an allegation. People can allege anything. But like the Tashkent files, how does it benefit anybody and who is it opposing? I don't understand. The controversy around the mysterious death of the second Prime Minister of India, whose job is it to issue a white paper and say, नहीं भाई शास्त्री जी की death तो heart attack से हुई थी. His family will be very happy if they resolve it, they conclude it. उनकी फैमिली को कंक्लूजन ही नहीं मिला, देश को नहीं मिला कंक्लूजन। देश को भी नहीं मिला, पर फैमिली, हाँ। उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके पोते, उनकी बहुएं, उनको ही नहीं मिला। समझिए मेरे या आपके किसी पेरेंट को कुछ हो जाए विदेश में और ये पता ही नहीं चले उनकी डेथ कैसे हुई तो कैसा लगेगा? सिमिलरली कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को अभी तक रिजॉल्व ही नहीं हुआ है, उनको कंक्लूजन ही नहीं मिला, तो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? सिमिलरली बंगाल में एक सबसे अधिक अगर कोई सोसाइटी ने सैक्रिफाइस किया है, सबसे अधिक किसी सोसाइटी ने बलिदान दिया है, पेन, तो वो है बंगाल। बंगाल वाज द ओनली स्टेट इन पूरी दुनिया में which was divided thrice. Oh, absolutely. 1905, Very few people know it. 1905 में हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल, उसके बाद 1947, उसके बाद फिर श्री अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल ने वो वंदे मातरम मूवमेंट चालू किया, तो दे हैव टू यूनाइटेड, इतना पावरफुल था वो मूवमेंट। देन इन 1947, देन इन 1971 इट वाज कल्चरली डिवाइडेड, तब तक एक बंगाली कल्चर से जुड़ा हुआ था, फिर उसको भी कट कर दिया, फिर इस्लामिक स्टेट आ गई, और अभी मैं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है, आई मीन इट्स नॉट ओपन टू डिस्कशन, पर मेरा ऐसा मानना है कि बंगाल राइट नाउ इज मेंटली एंड साइकोलॉजिकली डिवाइडेड and also socially divided in today's day and age. Of course, in today's day and age. And तो ये 3.5 divisions तो उसके हो चुके हैं, और दो ही ऐसे ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं जहां पे इतना मैसिव कल्चरल रेनेसांस हुआ है जो और कहीं पैरेलल नहीं है उसका, एक फ्रांस में और दूसरा बंगाल में। पर फ्रांस का रेनेसांस के रेमनेंट्स जो है वो अभी भी आपको मिलेंगे, बंगाल का वो सारा हेरिटेज हमने खो दिया। तो बंगाल ने इतना सफर किया है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब मैं कहता हूं पार्टीशन, तो व्हाट इज द फर्स्ट इमेज दैट कम्स टू योर माइंड? West Pakistan, Punjab, Right. the migration that took place from West Pakistan to our Punjab or to the rest of our country. That's what everybody in India believes. That is because of Bollywood films, but it is half truth, it's not full truth. जो कुरुक्षेत्र था, जो प्लेग्राउंड था पार्टीशन को, वो तो बंगाल था। 1905 में वहीं से शुरू हुआ, नींव वहीं पड़ी, नींव वहां पड़ी, और वहीं सारा महाभारत हुआ। अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड नहीं होता, जो प्योरली हिंदू जेनोसाइड था, इट वाज अ कॉल टू एनाहिलेट हिंदूज। कलकत्ता में डेमोग्राफिकली मार्जिनली हिंदूज ज्यादा थे, तो जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो बंगाल को लेबोरेटरी बना दिया गया वायलेंस की। सुहरावर्दी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर था, हाँ, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बोलते थे,
उसने कहा 2 दिन में इतने हिंदुओं को मार दो कि डेमोग्राफी चेंज हो जाए और कलकत्ता पाकिस्तान में चला जाए। And I want our viewers and our listeners to this podcast to keep this in mind. Direct Action Day. The Noakhali massacre, the violence that took place. इतिहास की पुस्तकों में और in our history books, a couple of paras, maybe a page or two, but not more. और उसको लिखते हैं राइट्स, राइट? इट वाज़न्ट अ राइट। उसने सीधे से, देखिए क्यों राइट नहीं थी, उसने ऐलान किया कि 16 अगस्त 1946 उसकी स्पीच है कि 60 रमजान का महीना था। हाँ। उसने बोला 16 अगस्त जो है वो रमजान का 8वां दिन है, 18th डे, एंड 18th डे इज नोन फॉर द बैटल ऑफ बद्र, जिस दिन 313 मोहम्मद साहब के साथ 313 मुस्लिम लोगों ने बुत परस्तों को हराया था, उनकी आर्मी को। ही सेड इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, और हमको जिहाद की परमिशन अल्लाह ने दी है, और इस दिन ऐसा जिहाद होना चाहिए, वी हैव टू फिनिश ऑल द, उसने कहा खून से भर जाना चाहिए कलकत्ता। और 2 दिन के लिए जितने थाने थे उनमें से 24 थाने थे, पुलिस स्टेशंस, एंड आउट ऑफ दैट 22 पुलिस स्टेशंस में से हिंदू इंस्पेक्टर्स को निकाल के सारे मुस्लिम इंस्पेक्टर्स लगा दिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 24 व्हाई 22? बिकॉज बाकी 2 में एंग्लो इंडियन थे, तो वो कुछ करेंगे नहीं। एंड देन ही हिमसेल्फ सेट एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स Suhrawardi, and he monitored this butchering of Hindus. The streets were full of skeletons and the vultures were eating the whatever flesh from the dead bodies. Photos सब available हैं सब जगह. We have recreated in our film. And these photos are taken from Time and Life magazine. They were taken by a photojournalist called Margaret. इतने लोगों को मार दिया था कि महीनों तक लाशें पड़ी हुई थी वहां पे, एंड मैं आपको सब पढ़ के भी सुना सकता हूँ, मेरे सारे कोट्स हैं, एंड दीज आर ऑल फॉरेन जर्नलिस्ट, दैट द स्काई वाज ब्लैक बिकॉज ऑफ द स्मोक एंड द वल्चर्स। इट वाज ब्लैक। क्यों? क्योंकि जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला था, जो सफाई करते थे उनको भी मार डाला था, एंड दैट्स व्हाई सुहरावर्दी वाज कॉल्ड बुचर ऑफ बंगाल। तो इट वो प्योर हिंदू जेनोसाइड था। अब मैं आपको एक पैरेलल देता हूँ। लॉट ऑफ पीपल हैव सीन शिंडलर्स लिस्ट, सो दे नो अबाउट गैस चेंबर्स। अरे यार, ज्यूस को गैस चेंबर में मार दिया था। ओके, एंड वी क्राई। दिखाते हैं जो आज भी पर्यटक जाते हैं। मैं गया था ऑश्विट्ज। हाँ, ऑश्विट्ज में उनको दिखाते हैं हाउ Jews were tortured and killed. So I went to Auschwitz. It was a life changing experience for me. पर मुझे अब इतना दुख होता है कि मुझे अपने कंट्री में इससे भी बदतर जेनोसाइड हुआ है। देखिए वहां पे 400-500 लोगों को एक साथ गैस चेंबर में मारते थे। तो जब ये जेनोसाइड हो रहा था वहां पे, ऑन द 16th August को शुरू, ऑन द 17th of August. So there was an Udiya person. He had a cotton mill called Kesuram Cotton Mill. So he asked all the Hindus to take shelter over there. उसने कहा मेरी फैक्ट्री में आ जाओ। तो ठसाठस भर गए, मतलब they couldn't even breathe. उनको सबको बाहर से आग लगा के जला दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, एंड हिंदू चिल्ड्रन वर थ्रोन इनटू बॉइल्ड वाटर एंड दे वर किल्ड लाइक दैट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे हिस्टोरिकल अकाउंट फॉरेन जर्नलिस्ट जो उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे उन सब के हैं। क्योंकि इंडियन हो तो लोग कहेंगे यार ये तो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, इसका है, आरएसएस का है, उसका है, कांग्रेस का। तो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट। आप सोच नहीं सकते कि मैं आपको एक छोटा सा पैसेज सुनाऊं, बिल्कुल, फ्यू लाइन्स। इतिहास को जानना, और देयर आर मेनी हु आर्ग्यू व्हाई वुड यू वांट टू रिविजिट हिस्ट्री। देयर आर मेनी हु से कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं, लेकिन क्या भावी पीढ़ियों को वो इतिहास जानना जरूरी है? Unless you learn from history, you are condemned to repeat your mistakes. Is that the line that you're working forward, that you're bringing through this movie Bengal Files? Because it's created a lot of controversy. You are wearing a t-shirt that says never again, so that dark chapter in our history is never repeated. Is that your intention with the Bengal Files? That's my intent. You had a para that मैं you आपको wanted to बताता read. हूँ। अब मैं बताता हूँ, पहले पढ़ूंगा फिर बताऊंगा किसने लिखा है। One day a ghastly scene of barbarity came to my notice while going to the university through Raja Bazar area. Like butchers who keep parts of slaughtered animals hanging by hooks, similarly naked bodies of Hindu girls, their hands and legs severed, were kept hanging by hairs
Horrid and heinous was that scene. It was the first time that I saw the open upper of ladies. Written by Mr. G.B. Mazumdar, ex-IG of Police, West Bengal, The Great Calcutta Killings and Noakhali Genocide. आप सोच सकते हैं, जहां पे बकरों को लटकाते हैं मरे हुए खूंटों पे, on those hooks, naked bodies of women were over there. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो IG पुलिस is saying that. ऐसे this research book we had made for, जैसे देखिए आपको मैं So बताऊं, I'll come to this research book in just a moment, and I want you to read out the next para too. But I want to understand your thinking. जो 1946 में हुआ, वो आप 2025 में क्यों उजागर कर रहे हैं? मतलब इसका मकसद क्या है? What's your सवाल motive? गौरव, सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए जो 1946 में हुआ वो 2025 तक क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं दिखाया गया? क्वेश्चन इज दैट. कोई चीज आपने दबा दी, छुपा दी. तो मुझसे कश्मीर के वक्त भी कई सारे जर्नलिस्ट ये पूछते थे कि भाई जो हो गया 1990 में, अभी आप क्यों दिखा रहे हैं? आप तो कश्मीरी पर. बिकॉज इफ यू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपके साथ, आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी हो जाए, आपका मैरिटल प्रॉब्लम हो या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो, व्हेन यू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, जो तो मेडिकल साइंस है, तो सबसे पहले साइकेट्रिस्ट ये बोलेगा दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर ट्रोमा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग. जब तक आप उस जनरेशनल ट्रोमा को एड्रेस नहीं करेंगे, हीलिंग नहीं होगी. इंडिया में क्या हुआ कि फ्रीडम के बाद, फ्रीडम या पार्टीशन के बाद, लोग फ्रीडम बोलते हैं, मैं उसे पार्टीशन बोलता हूँ. पार्टीशन के बाद जो हिंदू कम्युनिटी थी, उसको बोल दिया गया, अरे तुम मेजॉरिटी हो, तुम्हें ट्रोमा हो नहीं सकता. मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड. ये वेस्टर्न थिंकिंग थी कि भाई ऑप्रेसर जो है मेजॉरिटी होगी और वो माइनॉरिटी ऑप्रेस्ड होगी. लेकिन वी आर द ओनली सोसाइटी विच वाज रूल्ड फॉर 1200 years फॉर द बाय द माइनॉरिटी. तो वो जनरेशनल ट्रॉमा हमारी सोसाइटी में है. उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा फनी. कल मैं कोई सी बड़ी जर्नलिस्ट आई थी बॉम्बे, शी वाज टॉकिंग टू मी, सीनियर जर्नलिस्ट, एंड शी वाज टॉकिंग कि ये एंड सडनली व्हेन शी सेड, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये दिस इज लाइक वन कम्युनिटीज? मैंने कहा आप नाम बताइए, विच कम्युनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू? कहती नो नो नो, बिकॉज इट्स अ हिंदू कम्युनिटीज. तो मैंने कहा व्हाई आर यू हेजिटेटिंग बिफोर सेइंग दिस? क्योंकि ऐसा, तो देन शी एक्सप्लेन, उनको ऐसा लग रहा था कि इफ शी टॉक्स अबाउट हिंदूज तो शी विल साउंड कम्युनल. बट व्हेन यू से मुस्लिम्स आर मार्जिनलाइज्ड, देन नोबडी थिंक्स इट्स अ कम्युनल थिंग. मुस्लिम हिस्ट्री पे फिल्में बनी है, इस ज्यू हिस्ट्री पे बनी है, क्रिश्चियन हिस्ट्री पे बनी है, तो हिंदू हिस्ट्री पे क्यों नहीं बननी चाहिए? आपको एक बात पता है, हिंदू आर्किटेक्चर इतना रिच है, टेम्पल्स, ये कार्विंग्स, ये स्कल्पटिंग वर्ल्ड. हमने धीरे धीरे आफ्टर 1970s आर्किटेक्चर स्कूल्स में हिंदू आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट हुआ करता था, पढ़ाना ही बंद कर दिया है. हिंदू हिस्ट्री सब्जेक्ट हमने पढ़ाना बंद कर दिया है. लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर तो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब स्कूलों में भी हमने पढ़ा है. बट यू आर राइट, नॉट एट अ एडवांस स्टेज दैट मच. That's why our houses, our buildings have no Hindu architecture anymore, because you stop teaching. हमारे जो नए आर्किटेक्ट्स हैं उनको पता ही नहीं वो क्या होता है. They don't know. I think I hope now they're getting back to their roots to understand हम अपने घर एक तरीके से क्यों बनाते, क्यों आंगन होता था, क्यों आंगन होता था, क्यों उसमें वेंटिलेशन की, सूरज आने की इतना महत्व उसमें क्यों होता था. राइट. और क्यों हाई सीलिंग्स होती थी, क्यों ऊपर लकड़ी लगती थी, क्यों कोर्टयार्ड होता था, उस सब का रीजन है. बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो ये आपने पूछा क्यों इतने साल बाद. ये आप मुझे ये बताइए कि बंगाल इतना रिच है सिनेमा में, क्यों नहीं बंगाली फिल्म मेकर्स एक से एक? सत्यजीत रे हुए, मृणाल सेन साहब हुए, कितने हुए. सत्यजीत रे ने तो महाभारत पे बेस्ड शतरंज के खिलाड़ी भी बनाया है. राइट. इन लोगों ने 1971 में जो हुआ उसको एड्रेस किया है. लेकिन इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं एड्रेस किया? इसलिए क्योंकि वो एक थिंकिंग थी, एक कम्युनिस्ट थिंकिंग थी, जो कि एक बताना चाहती थी कि हिंदूज कैन नेवर बी ओप्रेस्ड. राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू हिस्ट्री बताने का मतलब है कि मुझे मुस्लिम्स से प्रॉब्लम है या मुस्लिम्स गलत हैं. ऐसा नहीं है. एक मुस्लिम जो काम करता, मेरी यूनिट में इतने मुस्लिम्स थे, मेरा फर्स्ट एड ही मुस्लिम था, मेरे दोस्त थे, मेरी फैमिली में इतने लोगों ने मुस्लिम लोगों से शादी किया अमेरिका में. मुझे सवाल वो नहीं है. अगर आप एक आदमी के दर्द, एक आदमी के पेन और ट्रोमा की कहानी सुनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आपको दूसरे से प्रॉब्लम है. उनका भी ट्रोमा है, उनका भी पेन है, पर उसके बारे में और लोगों ने फिल्में बनाई हैं. कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम्स के पेन और ट्रोमा पे कितनी फिल्में बनी हैं.
मिशन कश्मीर, रोजा, हैदर, फना, फिजा, एक से एक फिल्में बनी है, बड़े बड़े स्टार से डायरेक्टर ने बनाई है। तो एक फिल्म कश्मीरी पंडितों के अगर दर्द पे बन गई तो क्या प्रॉब्लम है? सेम बॉलीवुड और बॉलीवुड की थिंकिंग पर आऊंगा, क्योंकि आज आप मिले हैं तो, और ये मेरे मन में प्रश्न एक बहुत अरसे से मैं था। करूंगा, हाँ, तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है गौरव, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी हमने अमेरिका में वी डिड 12 स्क्रीनिंग्स। हम गए तो थे 2 स्क्रीनिंग करने, बढ़ते बढ़ते 12 हो गई, इतनी डिमांड हो गई। इस फिल्म को जेन ज़ी के बहुत लोगों ने देखा है। शुरू में नहीं आए थे फर्स्ट कपल ऑफ स्क्रीनिंग्स, पर फर्स्ट स्क्रीनिंग में न्यूयॉर्क में रटगर्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए। फिर उन्होंने दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग वर्ड। तो 14 ईयर से लेकर 23-24 ईयर तक की एज के बहुत लोग आए, और आखिर में तो वही आने लगे, जेन ज़ी जैम पैक। And most of them said when we entered the theater, we were someone else, and when we stepped out, we are a different person. and they've gone back with that thinking of never again. Yeah. So, what is the main? I know from what I've read about what this film is likely to be. It's the massacre of Hindus that took place. It is about the riots or the massacre, as you put it, sir. And it's about the direct action day कि Yeah. कैसे सिंगल आउट करके हिंदुओं को न केवल कलकत्ता में, लेकिन कलकत्ता से आग लगी और फिर बंगाल के और भागों में फैली. Yeah. Is that this movie all about? See, अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड नहीं होता तो भारत का पार्टीशन भी नहीं होता शायद, राइट? एंड these were the two defining moments, and the magnitude of violence, or I'd say the intensity of violence, this the world has never seen in such shortest period of time. 4 दिन में, 2 दिन में 40,000 लोगों को मार डाला था. So it's impossible to imagine कहीं और हुआ होगा. एटम बॉम्ब से लोग मर गए थे, लेकिन यहाँ पे तो अलग तरह से हुआ था. तो ये हमको जब Is तक the movie a graphic description of how Hindus were singled out and massacred? I've all the pictures I have taken, all the videos I have taken, all the descriptions, and I've recreated it. Every single word, every single shot, every visual in the film which you see is, I challenge every historian of the world from any side. I challenge them, find me one mistake in that or anything which is not documented in at least 10 to 15 officially authentic recognized documents. So there's no creative liberty that you've taken. कैसे? मैं तो जो गांधी जी ने बोला है वो मेरी फिल्म में, जिसने जो बोला है, आई हैव जस्ट ट्रांसलेटेड द डायलॉग्स फ्रॉम उर्दू टू हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी और बंगाली टू हिंदी. दैट्स ऑल आई हैव डन, एंड दैट आल्सो वी हैव गॉट इट चेक फ्रॉम स्कॉलर्स ऑफ बंगाली कि हाँ भाई ये करेक्ट ट्रांसलेशन है कि नहीं, नुआंस्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. वे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. द ओनली लिबर्टी वी हैव टेकन इज in the modern times. I have just changed the names, okay, because lots of legal cases are going on right now on some MLAs or something, so I didn't want to take that. लेकिन जैसे CBI पे स्टोन पेल्टिंग हुई थी, अब वो तो रियल किस्सा है, तो हमने वैसा दिखाया हुआ है. पर सबसे मजे की बात यह है, you see how deep our research and understanding of the problem is. हमने we shot this film in October और December 2024 में. तो फर्स्ट जो मॉडर्न टाइम है, प्रेजेंट टाइम है. अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, फिल्म की थीम ये है कि मुस्लिम लीग अनाउंस दैट दिस पार्टीशन इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट. तो क्या वही कम्युनल वायलेंस, वही कम्युनल पॉलिटिक्स, दैट सिनिस्टर पॉलिटिक्स, वो अभी भी चल रही है? तो अवर कंक्लूजन वाज यस. ओके, दिस इज माय कंक्लूजन. सो दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग. टू शो दैट, टू प्रूव दैट, हमने संदेश खाली के एग्जाम्पल लिए, बहुत सारी चीजों के एग्जाम्पल लिए. मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ. जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं डेमोग्राफी चेंज की बात आप क्यों कर रहे हैं, तो ये इंडिया टुडे का ही है ना. इंडिया टुडे की रिपोर्ट एक बताऊं, कैन कोट अनकोट कैन क्रिएट 4 पाकिस्तान if 30% मुस्लिम्स इन इंडिया यूनाइट, सेज टीएमसी लीडर शेख आलम. ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है यहाँ पे, करेक्ट. तो हमने कैलकाटा में मॉडर्न टाइम था, तो 2 days बिफोर द शूट हमने वी हैड पुट अ बिग सेट इन बॉम्बे. तो उसमें कैलकाटा पुलिस स्टेशन था, तो वहां पे इट वाज सेट. मैं 2 दिन पहले मैंने कहा यार कैलकाटा नहीं, दिस शुड बी 24 परगना एरिया होना चाहिए, वेयर आई फियर दैट टर्मोइल इज गोइंग टू फर्स्ट टर्मोइल इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो माय असिस्टेंट सेड कि नहीं सर, इंडिया में लोग समझेंगे नहीं दिल से कि मुर्शिदाबाद इज इन यूपी. तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये हमारी फिल्म है, हमारी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, दे विल गो एंड रिसर्च अगर नहीं समझेंगे तो.
तो 2 days बिफोर मैंने चेंज करवाया पूरा सेट, मुर्शिदाबाद किया, कॉस्ट्यूम चेंज किए, पुलिस इन कैलकाटा वेयर्स व्हाइट इन White, मुर्शिदाबाद correct, खाकी, तो correct. चेंज करके नए कॉस्ट्यूम बने, खाकी हुआ सारा. Whatever we showed there, whatever we shot over there, how the riots are designed, how everything takes place, हमने जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस प्रिंट की अपने मन से, I wrote those headlines and we printed and used them in the film. In April 2025, 6 months later, exactly carbon copy, same thing happened in Murshidabad. अब हम जब दिखा रहे हैं उसको, तो लोग कह रहे हैं अच्छा आपने मुर्शिदाबाद की भी रियलिटी दिखाई है. नो, हमने वो हाइपोथेसिस क्रिएट की एंड वी आर प्रूवन राइट, वेरी सैडली, वेरी अनफॉर्चुनेटली. सो दैट्स हाउ डीप वी हैव गॉन इन. तो वो जो सिनिस्टर पॉलिटिक्स उस वक्त की थी, सेम पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन राइट नाउ. As bad. I mean, slower than that, but as bad. But ultimately एक ना एक दिन ऐसा होगा. कश्मीर के वक्त में काफी लोग जब 70s में कहते थे कि भाई बीवेयर, यहाँ हिंदुओं का जेनोसाइड होने वाला है और कश्मीर को फ्री करने की डिमांड उठने वाली है, then nobody took it seriously. सबने कहा अरे ऐसे नहीं होता है. हुआ But the ultimately. 1990, what Kashmir File shows was a disaster that happened, and people sleepwalked through that disaster. Yeah. मतलब वो जो रलिव गलिव सलिव, अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर्स से ये कहा जा रहा था कि हिंदू कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी महिलाओं को या छोड़ दो, या आरा मशीन में लड़कियों को काटा जा रहा था. आई मीन आपकी रूह कांप जाती है उसके बारे में सोच के. एंड वी लिव थ्रू दैट इन आवर टाइम्स इन कश्मीर. गंजू साहब जो कि वहाँ जस्टिस थे, उनका असैसिनेशन जो हुआ था, यासीन मलिक की टीम ने किया था, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आजकल बड़ा वोलेटाइल पॉलिटिकल वो चल रहा है, पर उन्हीं की फैमिली ट्री में से somebody was sitting with the then prime minister in the aircraft, in the plane, and he warned him कि ये होगा. तो इसे नहीं ऐसा नहीं होगा. माय फ्रेंड फारूक हैज टोल्ड मी नथिंग विल हैपन. और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उस बात पे, राजीव गांधी जी ने. ही टोल्ड मी कोट एंड कोट, मेरे पास वीडियो उसका टेस्टिमोनियल है, तो मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन आई हैव अ वीडियो टेस्टिमोनियल. तो हमने बहुत कैजुअली लिया. बंगाल को वी आर टेकिंग कैजुअली. व्हेन आई एम सेइंग बंगाल इज बिकमिंग न्यू कश्मीर, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. और अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, अभी लीगल इमिग्रेशन जो है उसको एम्पावर करने का जो काम है, जो स्टेट पावर्स, व्हेन यू एम्पावर इलीगल इमिग्रेंट, जो अमेरिका में भी हुआ, जिसके कारण ट्रम्प जीत के आए हैं, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया, सो मे बी 5 years, 10 years later, 15 years later, a situation will arise which will be uncontrollable, which will be divisive, and it will be very difficult to deal with it, like Kashmir has become a very difficult situation. But the leadership in Bengal and the political parties, they're accusing you of, one, fishing in troubled waters before elections, and two, they're saying none of this is true in today's day and age. It's a peaceful state where Hindus and Muslims live in total communal harmony. इससे वहां की communal harmony disturb होगी. तो फिर हिंदू इलाके और मुस्लिम इलाके क्यों है, अगर इतनी हार्मनी है तो? क्या क्या कारण है? मुर्शिदाबाद में आज किसी हिंदू से पूछिए आप, मुर्शिदाबाद में जाके, जहाँ पे 80% हिंदू आबादी है और 20% मुस्लिम आबादी है, वहाँ के मुस्लिमों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रिवर्स में ये ट्रू क्यों नहीं है? एक बात. दूसरी बात, हमारे ट्रेलर को इसलिए रोका गया क्योंकि इट सेज ट्रू स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड. दे डोंट लाइक इट, दे डोंट वांट इट. तो अपीजमेंट तो देखिए बहुत सॉफ्ट चीज है. दिस इज द एम्पावरिंग ऑफ अ सर्टेन सेक्शन. जो एम्पावरमेंट आप उनको दे रहे हो तो किसी से छीन भी तो रहे हो. यू आस्क एनी बंगाली हिंदू, ही विल टेल यू द रियलिटी. मैं क्यों बोलूं? Why should I speak? आप go to my trailer, just see the reactions below. No film gets these kind of reactions. Everybody is saying that it happened with my grandfather, happened with my mother. अभी मुर्शिदाबाद का जो हुआ तो आप लोगों ने रिपोर्ट किया न्यूज़, मैं तो नहीं जानता उसके बारे में. हुआ तो है, करेक्ट. जो संदेश खाली में हुआ तो है. Now the problem is that why should a state government, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है मेरी फ्री स्पीच, आपकी फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने की, why should that state government stop my free speech? What are they trying to suppress? तो they are suppressing it. अभी मैं जब आपके आया तो मैं फोन पे बात कर रहा था. 2 एग्जाम्पल बताता हूँ. एक तो एकदम अभी आपके शो के पहले मुझे फोन आया, जो डिस्ट्रीब्यूटर है बंगाल का, ही इज सेइंग कि if this film is released in Bengal, it will create history. It will create history. क्योंकि History क्या or था? hysteria? हिस्ट्री.
कहता है ऐसी डिमांड कभी आई नहीं है, एवरी बंगाली पीपल आर कॉलिंग एंड से कब रिलीज हो रही है, किस थिएटर में हो रही है, कहता है ऐसी डिमांड आई नहीं, इट विल क्रिएट हिस्ट्री, बट द थिएटर्स, द मल्टीप्लेक्स चेन्स आर रिफ्यूजिंग टू रिलीज इट, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, बिकॉज दे कैन नॉट। नहीं, लेकिन अगर इससे खतरा है कि सिचुएशन वर्सन कर सकती है या कम्युनल वायलेंस हो सकता है या इसलिए नहीं। सोशल हार्मनी डिस्टर्ब कौन करेगा कम्युनल वायलेंस, आप मुझे बताइए। इसको देखने बाद कोई बंगाली हिंदू तो करेगा नहीं, क्यों करेगा, वो कौन करेगा? तो जिनको टोलाबाज बोलते हैं, जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जो कि पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं टुडे, वही कर सकते हैं, या पुलिस कर सकती है, और कौन करेगा, क्यों करेगा? पुलिस कर सकती है, ये तो बहुत गंभीर आरोप आप मेरे ट्रेलर को रोका, विजुअल्स हैं, आप ही की चैनल पे चल रहे थे, आप विजुअल देखिए, पुलिस ने आके रोका है। सारी फीमेल जर्नलिस्ट You were like quite a knight in shining armor. I'm sorry, in a very difficult. वो तो I mean, I can take this liberty with you and Pallavi ji. I was just, she's also an actor of the film and she's, मैंने और भी लड़कियां थी, जर्नलिस्ट थी, लड़कियां थी, उनको भी मैंने कहा इनको सेव करो, सब करो। अननोन पीपल केम इन, हमने तो सिर्फ 200 जर्नलिस्ट को बुलाया था, एंड इट वाज, हाउस वाज फुल ओनली ऑफ द जर्नलिस्ट, नो आउटसाइडर्स एक्सेप्ट ऑफ 6 or 7 of us, you know, the actors and few people of the our production company, that's it। एक भी बाहर का आदमी नहीं था उसमें। तो ये बाहर के कहां से आ गए सडनली? सो एनीवे, तो प्रॉब्लम ये है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है वो तो कभी नहीं रोकेगा इसको। क्यों रोकेगा? रोकना नहीं चाहिए। नंबर 2, एनीबडी हु इज अ प्राउड बंगाली, दे शुड सैल्यूट अस फॉर मेकिंग दिस फिल्म। For the first time, such a historical, powerful document is coming out. The perception about Bengal will change forever. भारत का बच्चा बच्चा बंगाल की हिस्ट्री पे गर्व करेगा। बच्चा बच्चा ये समझेगा what have we lost, the great heritage of Bengal. कितने बच्चों को ये पता है कि कितना रिफॉर्म मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कितने बच्चों को पता है, विवेकानंद, कितने बच्चों को पता है कि 2 नेशनल सॉन्ग्स वहां से आए, वंदे मातरम और जनगण मन। सही बात है। कितने बच्चों को ये बात पता है कि रेनेसांस वहां पे हुआ था? सही बात है। नहीं पता है ना ये बात। वेदांत, अच्छा, कितने बच्चों को ये पता है कि हरे राम हरे कृष्णा जो मूवमेंट चलता है सारे वर्ल्ड में आज, वो तो सारी दुनिया बच्चे जानते हैं, वो वहां से निकला है। हु नोज दिस? दे विल बी प्राउड ऑफ दिस एंड दे विल। देखो, अगर आपको ये पता चले कि आपकी माँ ने आपको बड़ा करने के लिए इतना सेक्रीफाइस, आफ्टर वी आर सक्सेसफुल, इफ यू गेट टू नो कि अरे मेरी माँ खाना नहीं खाती थी, मेरे लिए पैसा बचाती थी, वो साड़ी नहीं खरीदती थी, मेरे लिए पैसा बचाती थी, मेरी माँ ने कितना सेक्रीफाइस किया है, इफ यू गेट टू नो आफ्टर यू आर सक्सेसफुल, हाउ प्राउड यू विल बी ऑफ दैट, एंड हाउ मच केयर यू आर गोइंग टू टेक ऑफ योर मदर आफ्टर दैट, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है आपके पेरेंट्स का क्या सेक्रीफाइस है, जो हिंदुस्तान के हर माँ बाप करते हैं सेक्रीफाइस, तो इंडिया की जब नई जनरेशन को ये पता चलता है कि हाउ मच हैज गॉन बियॉन्ड दिस, योर परसेप्शन चेंजेस। तब आपको समझ में आता है, ओ, अमेरिका में सारे मुझे यंग जनरेशन ने ये कहा, ओ सडनली वी आर नाउ लुकिंग एट इंडिया डिफरेंटली। They said, sir, we used to look at Jews and blacks from a very, very different, with a lot of empathy. And we used to think, okay, even if they make mistake, let them, because they've suffered so much. We never thought about Hindus like this. तो आप क्या, बंगाल फाइल्स आपने किया, लेकिन हिंदूज का जो भारत में ही सिविलाइजेशनल परसिक्यूशन रहा, मैं परसिक्यूशन से ज्यादा जिस तरह से भारतवासियों ने लगातार रेजिस्ट किया, लगातार विदेशी आक्रांताओं को, while some of them settled down and accepted our way of life, some continued to resist. अंग्रेज तो 200 साल बाद चले भी गए, but some continued to resist and they still want to change the way we live in this land. So will you continue to raise your voice through your medium? Is that what your effort is? If I can, as long as I'm capable of doing that, I'll do it. देखो क्या है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया वॉज अ नॉलेज सेंटर, भारत जो है वो वर्ल्ड का नॉलेज सेंटर था। फिर उस नॉलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग आए हमारे यहाँ, सबको। मुझे दुख ही होता है कि तक्षशिला, द ग्रेट यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी देन, यूनिवर्सिटी सिस्टम हमने शुरू किया, वो आज पाकिस्तान में है। हमने कितना हेरिटेज लूज किया। और जो 11 यूनिवर्सिटी थी उसमें काफी सारी तो बंगाल में थी, जो बांग्लादेश में है, सब बांग्लादेश के अंदर है। हमने कितना लूज किया है, कितना खोया है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा व्हाट हैव वी लॉस्ट, हाउ, व्हाट विल यू डिफेंड, व्हाट विल यू प्रोटेक्ट। हमको अपना कल्चर नहीं मालूम। इज दैट अपनी हिस्ट्री नहीं पता, सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। वी आर नॉट प्राउड, वी डोंट अंडरस्टैंड
हु वी आर, हमें अपनी रूट्स ही नहीं पता है, हम कहाँ से आए हैं, इसलिए हम उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। जो जैसे हम जैसे बच्चे जो कि बहुत स्केर्सिटी में बड़े हुए हैं, हम बहुत ही एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास, हमने जो स्केर्सिटी देखी है, इसलिए मेरे पास इस ट्राउजर की, इस टी शर्ट की इतनी वैल्यू है, एवरीथिंग विच आई गेट उसकी इतनी वैल्यू है। एवरी टाइम आई ईट फूड, मैं रुकता हूँ जब जाके अच्छे बड़े होटल में, तो कई बार मेरे बच्चे जो शिकायत करते हैं ये अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, दैट इज ट्रू। यू नो। तो जब आपको स्केर्सिटी पता होती है, तो मैं ये चाहता हूं कि लोग समझें कि हम कहां से आए हैं। दूसरी चीज, कम्युनल वायलेंस, इंडिया स्टिल सफर्स फ्रॉम दैट, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कम्युनल पॉलिटिक्स एटलीस्ट, कम्युनल पॉलिटिक्स। और यही इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम वी टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, वी टेक 4 स्टेप्स बैकवर्ड्स। इसको अगर रोकना है तो उसके लिए इसके फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। व्हाट वाज दैट पॉलिटिक्स जिसके कारण इतना बड़ा सिविलाइजेशन 2 पार्ट्स में टूट गया, और आगे कभी ना हो। ये फिल्म फ्यूचर के लिए भी वार्निंग है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट? It's a film which is going to unite Indians, is going to heal people. It will express a generational trauma which never got a chance to be expressed. So this at 3 prong काम करेगी ये फिल्म। लेकिन do you foresee, apparently there are some cases that are being filed? हाँ, There are कल ही हाई कोर्ट में था हमारा। हाँ, तो that legally now you will have a battle. देखो यहाँ क्या है कि होता क्या है, ट्रूथ इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग एंड मोस्ट स्कैरी थिंग। सब कहते हैं कि सच ढूंढने जा रहे हैं, सच आ जाएगा सामने तो सब भग जाएंगे छोड़ के। ट्रूथ से किसको प्रॉब्लम हो सकता है, और एक फिल्म से क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? किसी ने फिल्म देखी नहीं, किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है, दे स्टार्टेड फाइलिंग FIRs, और एक नहीं मल्टीपल। और कुछ तो पार्टी वर्कर्स खुल के कि मैं इस पार्टी का हूं और मैं FIR कर रहा हूं, लीगल नोटिस एंड ऑल दैट, बिकॉज दे ट्राई टू डीमोरलाइज यू। दे वांट यू टू गेट स्टक इन लीगल प्रोसेस ताकि आपको अपना काम नहीं कर पाए। बट दे ऑल्सो डोंट नो हु दे आर डीलिंग विद। You're not demoralized. मैं इन चीजों से, बल्कि मेरी तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तुम और You're not scared. आई एम नॉट स्केयर्ड। मैं जितनी तुम FIR करोगे उतना मैं स्ट्रांग बनता जाऊंगा। ओके, अगर नहीं करते तो शायद मैं कहीं कॉम्प्लिसेंट हो जाता, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं, बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी टू रिलीज दिस फिल्म। दिस ऑपोजिशन हैज कन्विंस्ड मी कि वी हैव डन द राइट थिंग। इट इज सो इंपॉर्टेंट। इससे उसी आदमी को, जैसे एक कमरे में सब बैठे, मैं कह दूं यहाँ एक चोर है, तो सबसे पहले चोर अनकंफर्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब चोर है। अगर कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा तो मतलब चोर नहीं है, मेरा अजम्पशन गलत है। और इस फिल्म को कोई क्यों बैन करेगा? वाई शुड एनी, नो बंगाली कैन एवर बैन इट, इम्पॉसिबल, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कर ही नहीं सकता। ये तो बंगाल के फिल्म है। और एक बार फिल्म का सर्टिफिकेशन आ गया तो उसके बाद then there should be no super censors. Is that what your point of view is? भाई, people who have taken oath of the constitution, how can they suppress a free speech of a constitutional body approved film? Unless and until they are working for Muslim League or they are Pakistani agents, why will anybody, tell me something, But that why would anybody ban a film on Jew Holocaust? Did anybody try to ban Oppenheimer? Did anybody try to ban Rwandan genocide, the Hotel Rwanda? Did anybody try to, why would any, भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम जेनोसाइड पे फिल्म बने, उसको भी कोई क्यों बैन करेगा? इंडिया में बनी तो है, कश्मीर में मुस्लिम्स के ऊपर फिल्में इतनी सारी। लेकिन मुस्लिम जेनोसाइड तो कभी हुआ ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में सिर्फ हिंदू जेनोसाइड हुआ है। मोपला में हुआ है हिंदू जेनोसाइड, डायरेक्ट एक्शन दिन में हुआ, नोआखली में हुआ, कश्मीर में हुआ। हाँ, राइट्स हुई हैं, मुस्लिम मारे गए, बट एज अ रिटेलिएशन, हर समय एज अ रिटेलिएशन। आपने ट्रेन जला दी, रिटेलिएशन हो गया गुजरात में। तो रिटेलिएशन बहुत हुए हैं, लेकिन अच्छा, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रो करती रही है, मुस्लिम्स का ओहदा बढ़ता रहा है। जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं, इट इज बीइंग रूल्ड बाय मुस्लिम्स टुडे। बिजनेसेस में देखिए आप स्टॉक मार्केट में जाके देखिए, आप जाइए बॉम्बे में स्टॉक But the मार्केट। way all of us look at it, everything is being ruled by Indians. That is the perception that all of us, you and I and that entire country carries. Yeah. कि हम भारतवासी हैं सब, लेकिन आपको लगता है, and that's a strong statement you're making, sir. आप कह रहे हैं कि जो इस फिल्म को पर यहाँ पे एक oppose बात करेगा, एक वो चीज- मुस्लिम, वो पाकिस्तानी ही है, पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तानी, मैं एक मेटाफोरिकली का, भाई इस फिल्म से लॉजिकली अगर सोचें, एकेडमिकली, इफ यू आर इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक सिटिंग डाउन, और आप समझिए इंडिया को नहीं जानते, आप सिर्फ प्योर डेटा बेसिस पे काम कर रहे हैं,
तो किसको प्रॉब्लम होना चाहिए इंडियन पार्टीशन की हिस्ट्री पे फिल्म बनने से? पाकिस्तान को ही हो सकता है ना। मुस्लिम लीग इसलिए कह रहा हूं, मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर द एनाइलेशन ऑफ हिंदूज, तो उन्हीं को हो सकता है, वरना किसको प्रॉब्लम होगा? क्यों होना चाहिए? Yeah, that Ghazwa-e-Hind kind of elements. हाँ, मैं हाँ। बंगाल की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। फिल्म में तो डायलॉग है जो इतना हिट हो गया है, आज वायरल हो गया वो डायलॉग, दैट गर्ल सेज, माँ भारती शी सेज, कि बंगाल जमीन का टुकड़ा नहीं है, इंडिया का लाइट हाउस है। और है, है, सही में है। सही में है। मैं तो आई फिल्म में डायलॉग है कि क्या बंगाली संगीत, बंगाली खाना, बंगाली इसको भी दे दोगे? आई एम सो प्राउड। मैं तो जहां जाता हूँ बंगाली खाना खाता हूँ। मेरा तो अभी से नहीं, पहले से ही है, क्योंकि दैट्स द ओनली क्यूजीन इन द वर्ल्ड विच इज 7 कोर्स मील। बाकी सब फ्रेंच क्यूजीन 5 कोर्स मील है, पर सारा वर्ल्ड उसको जानता है। इस फिल्म के बाद सारा वर्ल्ड जान जाएगा कि बंगाली क्यूजीन इज 7 कोर्स मील। So I'm very proud of Bengal. My parents used to live. They were freedom fighters. They went to jail from Calcutta. I love Calcutta. सब लोग बुराई करते हैं कैलकाटा की, मुझे कैलकाटा अभी भी बहुत अच्छा लगता है, डिस्पाइट गंदगी और सब। I love Calcutta. I've studied in Kendriya Vidyalaya, Fort William, so Really? I have fond memories. अरे मैं भी of केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। Fort William में। नहीं, वहां पे नहीं, हाँ, मैं और बाकी जगह हाँ, पढ़ा हूँ। हाँ। हाँ। अरे वाह, तो I We love stayed on the ramparts, so you're absolutely right. That you part know of Calcutta Calcutta. is beautiful. तो इससे प्रॉब्लम उनको ही होगा जिन्होंने जेनोसाइड किया है। जैसे कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप्स को प्रॉब्लम था मेरे साथ, उन्हीं ने फतवे इशू किए। बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका आई डोंट केयर मच, पर मेरे को ऐसा लगता है गुड सेंस शुड प्रिवेल। मैं अभी यहाँ आ रहा था, जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, राइट, उन लोगों ने हमारी फिल्म का एड जो आता है, रिलीजिंग टुडे, ये थिएटर के नाम लिखे होते हैं ना, ये शो इतने बजे, दे हैव रिफ्यूज्ड टू प्रिंट दैट एड। पेड एड नहीं ले रहे? नहीं, लीडिंग न्यूज़पेपर्स, 3 ही तो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं वहाँ। और क्यों नहीं ले रहे? What have you been कह रहे हैं told? वी हैव टू सर्वाइव हियर, हम दिक्कत में फंस जाएंगे, वी विल हैव ट्रबल। तो is it likely to be fifth? Is it likely to be released in आई विल Bengal? फाइट माई टूथ एंड नेल। मैं तो इसके लिए लड़ूंगा। देखो, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जान देने को तैयार होती है, एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर। मैं कन्विक्शन 5 साल लगाए हैं, हम कन्विक्शन और बहुत ही पैशन से ये फिल्म बनाई है। वी आई मीन मैं आवर कॉन्शियस इज टोटली क्लियर। हमारी फिल्म में लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग आपने ट्रेलर में देखा है, फिल्म में कहीं और आता है, एंड ही इज होल्डिंग अ हिंदू एंड मुस्लिम थ्रेड एंड ही सेज, बताओ इसमें कौन सा धागा वी द पीपल ऑफ भारत का है, एंड दैट इज द इंटेंट ऑफ द फिल्म। हम में से हम भारतीय पहले हैं कि क्या है, पर हम भारतीय का मतलब क्या है? हम इंडियन बोल के उस फसाड में छुपने की कोशिश करते हैं एक सेकुलरिस्ट नैरेटिव में, पर हम पहले तो फर्स्ट डेफिनेशन तो हम भारतीय हैं, उसे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये भारतीय कौन है? ही इज अ सन एंड डॉटर ऑफ मां भारती। ये 1905 में, ये आप देख सकते हैं, ये अबींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, 1905 में ही मेड दिस व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू हिंदू बंगाल एंड मुस्लिम बंगाल। ओके, देखिए उनके हाथ में ये खेत खलियान का है, दिस इज ऑल द नॉलेज, आवर स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज द इंडस्ट्री ऑफ दिस थिंग, एंड दिस इज द ओनली गॉडेस हु हैज 2 हेलोज। बुद्धा का एक हेलो है, क्राइस्ट का एक हेलो है, ये 2 हेलो है, महावीर का एक हेलो है, यहाँ 2 हेलोज हैं, राइट। लुक एट हर पूरा बॉडी, दिस तो he introduced Swadeshi values into art, and he started a renaissance called Bengali School of Art, the Bengal School of Art. और ये 2 हेलो का की थॉट प्रोसेस क्या है? ये मतलब एक डिवाइन है, एक हमारा पूरा जो है वो है मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, हाँ, राइट। तम सोमा ज्योतिर्गमय। तो एक ये पूरा जो माँ भारती का जो पूरा नॉलेज, आर्ट, कल्चर, डिवाइन, वो जो है, और ये जो है पूरा भारत का जो नॉलेज सेंटर थे, उसका ही 2 हेलोज में हम रह रहे हैं। इसका जो बेटा या बेटी है वो भारतीय है, इसीलिए वंदे मातरम निकला। और ये दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बंकिम चंद्र चटर्जीज आनंद मठ, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम जो सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोगों ने नॉलेज क्रिएट की वर्ल्ड के लिए, विच इज इमॉर्टल नॉलेज। वो जो नॉलेज है, उन्होंने पहली बार भारत माता का कॉन्सेप्ट निकाला, माता बताया इसको,
वो इसलिए बताया बिकॉज माता वो होती है जो कुछ देती है अनकंडीशनली। तो हमारी धरती धरती, गाय, हम्म, जमीन खाना देती है, तो हम्म, माँ भारती उन्होंने कहा ये देती है। हम्म, तो ये फिल्म उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। बट आई वाज सिटिंग, गंगा के किनारे बैठा था मैं कल, सो मैं ये देखा माँ वहाँ गंगा हाँ स्टॉल्स में माँ गंगा देती है, क्योंकि जो भी नदी उसमें मिलती है वो गंगा बन जाती है। बिल्कुल तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, ये तो 1905 में थी, लेकिन आज अगर मैं हमेशा ही रिपीट करता हूं, हम बोलते हैं भारत माता की जय और कितना प्राउड फील करते हैं, पर पीछे कंधे पे हाथ लगा के वाकई में माँ भारती हमारे सामने खड़ी हो जाए, मेरी माँ जैसी अगर है, तो कैसी दिखती होगी और वो क्या बोलेगी? क्या वो ट्रॉमेटाइज्ड होगी? क्या पेन में होगी? क्या उसके अंदर एक दर्द होगा? व्हाट विल शी से? मुझे ऐसा लगा, दिस इज एन आर्टिस्ट इंटरप्रिटेशन, मुझे ऐसा लगा वो मुझसे कहेगी कि देखो मेरे साथ क्या-क्या हुआ, मैंने क्या-क्या सहा, मुझे कितना लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, मुझे तोड़ा, मुझे मोलेस्ट किया, लेकिन मैं जिंदा रही सो दैट यू रीच हियर। तो व्हाट हैव यू डन फॉर मी? तुम क्या करते हो मेरे लिए? सच बोल रहा हूं गौरव, दैट वाज द मोमेंट आई सेड आई हैव टू मेक दिस फिल्म, दिस इज माय कॉलिंग, आई एम जस्ट अ मीडियम। और मैं सच कह रहा हूं, एज अ मीडियम आई हैव मेड दिस फिल्म, आई गॉट इट मेड थ्रू मी। हाउ डिड आई फाइंड ऑल दीज सर्वाइवर्स? 100-year-old, 102-year-old, कईयों के तो हमने इंटरव्यू किए, 2 लोग तो उसके बाद दे डाइड, पुअर, दे वर वेरी ओल्ड। ये कैसे हुआ? सब सब कैसे बनती गई? थिंग्स केप्ट हैपनिंग एंड टुडे वी आर हियर रिलीजिंग दिस फिल्म। एंड व्हाई नो डायरेक्टर एवर थॉट अबाउट इट? नो डायरेक्टर थॉट अबाउट इट। तो फॉर मी इट्स, मेरे लिए बड़ी सेक्रेट चीज है। इट्स कमिंग आउट ऑफ प्योरिटी। यस, देयर इज अ वायलेंस, इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ एब्सेंस। आर्ट ऑफ एब्सेंस इज व्हेन समथिंग इज एब्सेंट, देन ओनली यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। तो वो एक आर्टिस्टिक नुआंस है। I am showing what happens when humanity is absent. This is what happens. and So, direct action day clearly there was no humanity. But are you saying today we are reaching that situation? Because that is something that the Bengal government is taking strong objection to. Point one, point two, they are then linking it to politics of the times and elections in Bengal. So they're saying आप अपने art को एक political medium में use कर रहे हैं. do you think I'm an intelligent person or a dumb person? What do you think? Do I have some logic, some intelligence? तो अगर मैं थोड़ी भी इंटेलिजेंस मेरे अंदर है, तो मैं फिर अभी अगस्त सितंबर में क्यों रिलीज करूंगा? आई शुड हैव रिलीज्ड इन जनवरी ना। तो फिल्म भी और न्यूज में होती और सब कुछ होता। आई विल रिलीज, अभी तो बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, इंडिया में हर समय इलेक्शन चलते हैं। कब जब नहीं करूंगा तो कहेंगे इस म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, उस स्टेट के इलेक्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ? राइट। तो इसलिए वी वर रिलीजिंग ऑन 15th of August। और अगर लोगों को लेकिन लगता है आपका ट्रेलर रिलीज वाज टाइम्ड विद डायरेक्ट 16th of एक्शन डे. August, yeah. एग्जैक्टली. तो that's a coincidence. I told you ना, things are happening on their own. मैं नहीं मतलब कर ये रहा हूँ। आपने टाइम नहीं किया था हम तो कि 15th 16 अगस्त को अगस्त रिलीज कर रहे थे फिल्म को। We announced 15th August, but for some reasons it got postponed to 5th of September. और ट्रेलर जो है वो 20 दिन पहले रिलीज होते हैं। तो टाइमिंग ऐसी हुई कि 5th सितंबर के 20 दिन पहले 16th August. पड़ रहा था। एंड नथिंग कैन बी मोर अप्रोप्रिएट देन रिलीजिंग ऑन डायरेक्ट एक्शन डे। या क्यों डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जिसने जो पढ़ा है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर आई ऑलवेज नो चक्रव्यूह पॉडकास्ट के जो मेरे व्यूअर्स हैं और ऑडियंस लिसनर्स हैं, they instantly fact check everything, they cross check and they come back to us, which is something that gives me great pride that we have a very loyal band of listeners. So after this podcast, you should check the replies. I am telling you, a lot of people I'm going to forward them to you. lot of people are going to write. They know about it. They'll research. Just see the The comments. direct action day. No, our discussion. Just see the replies. I am telling you what people are going to write. I know it because they are not allowed to speak. They will write in replies. No, because facts must come out in public domain. I am all for facts coming out in public domain, because unless you learn from history, you are condemned to repeat it. मैं आपको बताऊं why I say कि same politics is going on in Noakhali. That was the first case of censorship of press. Noakhali is surrounded by backwaters. तो वहां से न्यूज़पेपर्स जितने थे वो बोट से जाते थे और आते भी बोट से थे।
So Ghulam Sarawar Hussaini, who actually led the genocide of Hindus, he killed 400 Hindus in one night in Rajendra Lal Roy Chaudhary's house. तो उसने सब सेंसर कर दिया, बोला कोई नाव आएगी नहीं, कोई नाव जाएगी नहीं, कोई न्यूज़पेपर बाहर जाएगा नहीं, कोई न्यूज़पेपर आएगा नहीं. कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उसके ऑफिस को बॉम्ब कर दिया, ब्लास्ट कर दिया पूरा का पूरा. पूरा सेंसर हो गया. इंडिया में किसी को 15 दिन तक पता ही नहीं चला हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है. और जिसने भी उसके बारे में बात करने की कोशिश की, उसकी जुबान काट दी. मिठुंदा इज प्लेइंग समबडी हुज टंग इज बर्न्ट. इट्स कम फ्रॉम देयर. That was the punishment. Nobody was allowed to talk about it for 10-15 days. Right? आज उस इंटेंसिटी पे नहीं है, लेकिन अगर उस नोआखली के बारे में कोई फिल्म बना रहा है तो उसको तो सप्रेस किया जा रहा है. न्यूज़पेपर्स आर नॉट अलाउड टू पुट आवर एड्स. थिएटर्स आर नॉट अलाउड टू दिस थिंग. अब मैं बोलूंगा, कोई कहेगा साहब ऑफिशियली कहाँ है, दिखाओ. इट्स नॉट ऑफिशियली. लेकिन मैं पहले तो हम मल्टीप्लेक्स में ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, और फिल्म का ट्रेलर कहाँ लॉन्च होता है? थिएटर में होता है. आई एम द ओनली वन हु हैज लॉन्च्ड इन अ 5-star होटल बिकॉज वी वर नॉट अलाउड. एज सून एज आई लैंडेड एट द एयरपोर्ट आई वाज टोल्ड कि थिएटर ने बोला साहब हम तो नहीं करेंगे. क्यों? कि न्यूज़पेपर की अगर लाइट काट दी तो कौन क्या करेंगे? उनका पानी बंद कर दिया तो आप क्या करेंगे? इमरजेंसी में तो हुआ ही था हमारे देश में. नहीं, बंगाल में अभी होता ही है. जो अपोज करता है उसका पानी बंद कर दो, उसका नल बंद कर दो, 4 गुंडे जाके कांच तोड़ देंगे. आप क्या करेंगे? That's the problem. So, but were you rattled the kind of जो भीड़ एकाएक आ गई एंड जब Yeah. पल्लवी जी को और बाकी लोगों को, I बाकी was- महिलाओं को आपने वहां से रेस्क्यू किया? या मैं एज अ इंस्टिंक्ट के लेवल पे मैं थोड़ा ब्रेव हो गया था, बट आई वाज इनसाइड आई वाज वेरी वेरी स्केयर्ड. इसलिए क्योंकि जब अननोन फेसेस आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दीज पीपल हैव कम टू क्रिएट न्यूसेंस. और मैंने कहा न्यूसेंस हो जाएगी तो होगा क्या कि सारा ब्लेम हम पे आ जाएगा और फिल्म खतरे में पड़ जाएगी. And that was my first thought. And my second instant thought was, what about these girls and women, to take them किसी तरह से लेके जाओ. How did she react to you later? Pallavi is a brave, very brave person. बल्कि वो तो कह रही थी, don't worry, I'll take care of myself. वो मुझसे कह रही थी, तुम्हें जो आए अटैक करने, तुम बचो तो ये वो. But somehow, क्योंकि because I have CRPF security, तो we got saved. And पर कितनी जर्नलिस्ट लड़कियां बेचारी, मैं आपको मैसेजेस आफ्टर द शो आई कैन शो यू. दे हैव रिटन टू मी, सर हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. एंड द सेम पुलिस जिसने वायर कट किए, वो पुलिस खड़ी देख रही है. उनकी ड्यूटी नहीं थी हमें प्रोटेक्ट करना और ऑर्डर लाना. How do you then now intend taking this forward? अगर बंगाल में रिलीज नहीं हुई, what's your strategy? देखो, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली, अगर वो लोग इसको रोकेंगे तो अगेन आई विल फॉल बैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं आई विल गो टू द कोर्ट एंड आई विल डेफिनेटली अपील टू कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट माय राइट्स. लेकिन कोर्ट तो शायद ऑर्डर दे देगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई, आई मीन देयर इज नोबडी हु कैन स्टॉप इट. लेकिन अगर उसके बाद भी रिलीज नहीं करने दी गई, तो देन इट्स अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन आवर डेमोक्रेसी. देन मैं तो फिल्म बनाता रहूंगा, बट लॉट्स ऑफ विवेक अग्निहोत्रीज हु हैव पोटेंशियल एंड हु वांट टू मेक फिल्म्स रिलेटेड टू बोल्ड सब्जेक्ट्स एंड strong subjects, they will be disheartened and they won't make films like that, and we will keep making these very dumbing down stupid films which will show a La La Land never address the reality. You know, since you mentioned La La Land, the last couple of minutes that we have on this part of the show, आपको लगता है कि बॉलीवुड कुछ इश्यूज पर फिल्म बनाने से कतराता है? मतलब इज देयर अ ओमेरता काइंड ऑफ अ कोड कि हम इस तरह की फिल्में बनाएंगे ही नहीं? हाँ, इश्यूज पे फिल्म ही नहीं बनाते हैं वो लोग. कहाँ बनाते हैं बट issues? इज दैट कि अरे वो तो प्रॉफिट के लिए बनाना चाहते, तो प्रॉफिट हो गया तो बना दी फिल्म, इसमें अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यों बनाए इस तरह की फिल्म? नहीं, उनको पता चल जाए इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इस पे भी बना देंगे, ऐसी बात नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आर्टिस्ट जो है ना, वो फियरलेस होना चाहिए. आर्टिस्ट को डर नहीं होना चाहिए. ये सब डरे हुए लोग हैं, क्योंकि ये आर्टिस्ट नहीं रह गए, दे हैव बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स. That's why you see our फिल्म इंडस्ट्री. the stars. That's why you see the stars. Where do you see them maximum?
You will see them in doing events, in brands, in advertising. Very rarely you see them doing films. 3-3, 4-4 साल में एक फिल्म करते हैं. So they are like, we also make films. And they make all their money from somewhere else. Or brands don't want any controversy. They want everything like very, very neutralized, sanitized. इसलिए ये सारा है. अरे आप मुझे ये बताइए कि पहलगांव में इतना अटैक हुआ, why didn't film industry come out on the streets? वैसे ये मैं आपसे सवाल पूछने ही वाला था, मैं उसी पर आ रहा था। आप तुम तो आर्मी का भी बैकग्राउंड है ना आपका, हाँ। है ना? तो आप तो आपने देखा होगा अपनी आंखों से, इंडिया में जब भी कोई प्रॉब्लम होता था, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ट्रक में भर के घुमा करते थे. सुनील दत्त तो पूरा इधर से उधर गए थे. कितनी फोटोज हैं नहीं, राज. साधना पास है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अच्छा वो क्योंकि साधना जी वहां गई होंगी तो वो साधना पास पास बन है, गई वो या. जगह। बेताब वैली है कश्मीर में, क्योंकि बेताब फिल्म की शूटिंग वहां पर हुई थी। हाँ, नहीं आपको मैं फोटोग्राफ्स जाके हाँ। आप सर्च करिए, आपके व्यूअर्स जाके सर्च कर सकते हैं. हाँ। देवानंद, दिलीप कुमार, हाँ। राज कपूर, उसके बाद सुनील दत्त वगैरह, उसके बाद अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जनरेशंस बता रहा हूँ आपको, जी। अप टू संजय दत्त एंड ऑल. हाँ। इंडिया में जब भी कुछ हुआ है, ये लोग ट्रकों में भर भर के रैलीज निकाली हैं उसके हाँ, अगेंस्ट. देश के लिए। देश के लिए हर समय चंदा इकट्ठा किया है इन लोगों ने. ये क्रिकेट मैच खेलते थे सो दैट दे कैन गेट मनी. फिल्म इंडस्ट्री कलेक्टिवली यूज्ड टू डोनेट टू प्राइम मिनिस्टर्स फंड. इंडिया में अकाल पड़े, फिल्म इंडस्ट्री पैसे इकट्ठा करती थी. इंडिया में बाढ़ आ जाए, ये करते थे. टेररिस्ट अटैक हो जाए, ये लोग खड़े होते थे उसके लिए. अभी क्या हो गया फिल्म इंडस्ट्री को? पहलगांव में इतना बड़ा अटैक हुआ, नोबडी अटर्ड अ वर्ड. क्यों? ये तो अगली बार आप बुलाइएगा किसी को, उनसे पूछिएगा. बिकॉज डरे हुए सहमे लोग बन गए हैं. हमारी फिल्मों में से करेज चली गई है, स्पाइन चली गई है. और ऐसा नहीं है हमने सोशल इश्यूज पे फिल्म नहीं बनाई है, बहुत एक से एक अच्छी फिल्में हमने बनाई है. श्याम बेनेगल ने बनाई है, गोविंद निहलानी ने बनाई है, करप्शन के अगेंस्ट फिल्में बनाई है. इवन अमिताभ बच्चन हु प्लेड लार्जर देन लाइफ, बट ऑल हिज फिल्म्स एड्रेस्ड सम सोशल इविल ऑफ द सोसाइटी. इट डिड हमेशा आप देखिएगा ऐसा. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री is the only film industry in the entire world which I am so proud of, I can't tell you, and nobody tells this thing, which has created a special genre called social Muslim dramas, Muslim socials. इतनी फिल्में बनी है, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, सुनील, सारे एक्टरों ने किए मुस्लिम सोशल्स. अब मैं हॉलीवुड नहीं कर पाया वो काम, हालांकि हॉलीवुड बड़ा चैंपियन बनता है इस्लामिक मार्जिनलाइजेशन के ऊपर. वो नहीं बनाते ऐसी फिल्में, वो हमेशा मुस्लिम्स को वो बनाते. उसके अलावा आप देखिए हिंदी की जो हमारी कमर्शियल मूवीज हैं, उनमें हमेशा मुस्लिम एक्टर्स को बड़े एम्पैथी के साथ रखा गया है. लोग मजाक भी उड़ाते हैं, रहीम चाचा. दीवार जो जावेद साहब की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है उनके करियर की, आई थिंक मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म है. उसमें वो जो हीरो है वो शिव के मंदिर में जाने से मना करता है, कहता अपनी माँ से कहता मैं एथीस्ट हूं, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, मैं भगवान को ही नहीं मानता हूं. लेकिन 786 का बिल्ला अपनी जेब में रखता है. पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो आप मुस्लिम सोशल बना सकते हैं, हिंदू हिस्ट्री, हिंदूज के पेन के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बना सकते? अभी फिल्म आएगी, एक आदमी इस फिल्म के बारे में नहीं बोलेगा. But I really look forward to watching your film, and you've made the Bengal Files. Viewers will decide on merit how that film is, but for your passion and your effort, and for joining me here on India Today on the Chakravyuh podcast, sir, many thanks. थैंक यू गौरव, आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू. मैं बीच में थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो रहा था, फिर मैंने कंट्रोल किया. इट इज बिकॉज योर आईज हैव सच ऑनेस्ट एंड प्योर लुक, और मैं डायरेक्टर हूं तो मैं आईज ही देखता हूं, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, बहुत ऑनेस्ट बट वंडरफुल. मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, आपको नेवर अगेन देता हूं.